So, coming again in a minute or two, I'm going to take attendance again. If to see if somebody is absent now, so they will be marked absent in the second session. And if somebody has come back, they are present now in this class. They will be marked present. Okay, for 1 hour. So let's see this one first. In the distance vector routing protocol we were discussing, so we have this that at the end of the day we have all the paths that are from that are propagated all the way from E to C and then C to A and then A to D. So now D knows that it can go to E with cost is equal to 9 through A. Okay. Similarly, E knows that it can get to D with cost is equal to 9, 4 plus 2 plus 3. That is equal to 9 with the cost of through C. And similarly, they know the shortest path from from themselves to the all other nodes, right? So in distance vector routing, sharing and updating have there are two things. In the initial phase, all the nodes send information to all other nodes. And as we know about the Bellman-Ford algorithm, that it has to run n minus 1 times. So it depends on the number of nodes. So of course, in case of inter-domain routing, we can know that this is we know the number of total number of nodes. Okay, but intra-domain routing. But in inter-domain routing, where then our network is connected to some other network, we don't know the number of nodes, how many nodes are there. So we cannot use this algorithm over there. So there are two types of updates. One is one is the periodic update. It sends the routing table normally every 30 seconds in a periodic update. The period depends upon the protocol that is using distance vector routing. Only the routing table is exchanged. And then the other one is triggered update, a node that sends its routing table to its neighbors anytime there's a link down, anytime there's a node gone, the routing table is going to be updated, and then the information is going to be propagated to all of the network. So coming to link state routing. Link state routing is a thing in which we have in link state routing we have a we use Dijkstra's algorithm, right? So the Dijkstra's algorithm is used to build a routing table at each node. The building tables become possible if each node has the entire topology of the domain, which includes list of nodes, list of links used, how nodes are connected, link cost, and the cost of the condition of the links, whether the links are up or the links are down. So what happens is that in Dijkstra's algorithm, every node needs to know all the information about every other node. So this is what happens is that the replica of this graph is present in every other node. So how this replica can be present with any other node? It is very simple. The every node sends its information and information about all its links that to every other node in the network with using flooding. So what happens is that C sends information about its nodes that it can get to A in cost 2, it can get to B in cost 4, it can get to E in cost 4. It sends this information to every other node. It sends this information to A, it sends this information to B, it sends this information to E. Upon receiving, A will send this information to every other node except C. From where it receives, it will not send it back, but it will send it to all other nodes. So there is a lot of network traffic that goes on in link state routing. In link state routing, how can a common topology be dynamic and stored in each table? Link state routing is based on assumption that each node has a partial knowledge of the topology, where it knows the state of its links, the condition and the cost. Of course, in this case, C cannot have any information about E's
neighbors and its links. It cannot have any information about D's neighbors and its links. So it's the information propagated by every node to every other node that makes up the that creates this network again at the beginning of the again at every node of the at every node. So for example, like I said, that if D does not know any information about E and its neighbors, but E will propagate this information through its neighbors and flood it in every direction. So when the link state packet is received, D will know the information about these links. So the topology must be updated for each node if whenever there is a link is down. A link state routing is based on assumption that each node has partial knowledge of the topology, where it knows the state of its links, the condition, and cost. As a result, the whole topology can be compiled from a partial knowledge of each node. Four sets of actions are required to ensure that each node has the routing table showing the least cost node to every other nodes. So these are the four steps through which every node knows that it has the information about every other node. The first thing that happens is that the creation of link states by each node through a link state packet. A link state packet is created. So whenever a link state packet is created, it carries all the information about a node. For example, it carries all information about node C. Okay, and then it will send the link state packet to every other node. The dissemination of link state packet to every other node, every every other router through flooding in an efficient and reliable way. Formation of a shortest path tree for each node. Then when all the nodes receive the flooding and get to know the link state packets, they receive link state packets of all other nodes, they will find a shortest path tree for each of the nodes. And then the routing table is calculated based on the shortest path tree. We will see with an example. An LSP can carry large amount of information including node थोड़ा identity. अटेंडेंस ले लो। मैं ले रहा हूँ, एक मिनट, अभी डिस्टर्ब नहीं करें, मैं ले लेता हूँ. For example, a link state packet can carry large amount of information including node identity, list of links, and sequence number and age. तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि चलो आप लोगों की वो पहले ले लेता हूँ मैं, ठीक है, अटेंडेंस सही है. दो मैसेजेस भी आए हुए हैं प्रॉब्ली. हाँ, अटेंडेंस बेटा क्लास के शुरू में होती है, एंड में नहीं होती. और इसके अंदर जो है ना, आपका जो है वो क्या नाम है, जो जो आपके कुछ एब्सेंसेस अलाउड होती है ना. वैसे तो जीरो एब्सेंसेस अलाउड होती हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत अलाउ कर देते हैं वो इसीलिए करते हैं कि जो है वो, ताकि अगर कोई मिस हैप हो जाए आपका तो आप उससे जो है कवर कर सकें, ठीक है ना. तो हमारे पास अब आज की अटेंडेंस में हम देख लेते हैं सेकंड सेशन वाली, ठीक है. अच्छा, इफ्राहिम यूसुफ आ गए. इफ्राहिम यूसुफ आ गए. इफ्राहिम यूसुफ नहीं है ना. इफ्राहिम यूसुफ नहीं आए. अच्छा, इसके अलावा फिर हमारे उमर सिद्दीकी. उमर सिद्दीकी आ गए. प्रेजेंट। अच्छा ठीक है, एक आपके आवर की लग गई. और ठीक है. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास वाकई भी ले लेते हैं क्योंकि हम कम पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन वो ज़्यादा है ना. तो सुफियान आसिम साहब हैं. सुफियान आसिम साहब एब्सेंट हो गए ना. प्रेजेंट है सर। अच्छा, प्रेजेंट है. अच्छा, अब्दुल हादी. प्रेजेंट।
इफ्राहिम यूसुफ, वो एब्सेंट है। रिजवान, प्रेजेंट। कियान माजिद, प्रेजेंट। महविश रहमान। Present. अच्छा, हुरुल एन हरम, Present. राबीन आसिफ। राबीन आसिफ नहीं है प्रेजेंट ना? है। प्रेजेंट है। चैट में लिखा है। अच्छा, चले मोहम्मद हसन अशरफ। प्रेजेंट सर। अच्छा, अनीशा राना। अनीशा राना एब्सेंट। अनीशा नहीं एब्सेंट है ना आज, दूसरे वाले में। अनीशा राना एब्सेंट होगी। अहमद अवैस। प्रेजेंट। खुदामा अहमद खान। प्रेजेंट। सदफ अशफाक। प्रेजेंट। सदफ अशफाक प्रेजेंट। अच्छा, अच्छा, मलिक अब्दुल सलाम। प्रेजेंट। मोहम्मद ताहा सिद्दीकी। प्रेजेंट। जुहेब अरशद नूर। प्रेजेंट। मोहम्मद उमर सिद्दीकी, ये तो खैर आगे थे। प्रेजेंट। जवादुल हसन। जवादुल प्रेजेंट हसन सर। हैं? जवादुल हसन प्रेजेंट है। प्रेजेंट सर। ठीक है, मोहम्मद उरूज। मोहम्मद उरूज एब्सेंट हो गए ना? और उस्मान हमीद। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। ठीक है, उमर हुसैन। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। मुस्तफ़ा जमान खान। प्रेजेंट। मोहम्मद जैन। मोहम्मद प्रेजेंट। जैन। प्रेजेंट है उनका इशू है इंटरनेट का। फातिमा प्रेजेंट इलियास। है। Present, sir. मोहम्मद उमर। प्रेजेंट। मोहम्मद आकिब। प्रेजेंट सर। मोहम्मद सुलेमान शरफ। सुलेमान शरफ एब्सेंट हो गए ना? सर सुलेमान शरफ। आए थे सर बीच में सर उनकी लाइट चली गई है शायद आए थे सर। प्रेजेंट सर, उनकी लाइट गई हुई है। हाँ, तो तभी आए डिस्कनेक्ट। एब्सेंट थे है ना? सर। एमन सिद्दीक प्रेजेंट। अच्छा, फहद बिन नासिर। प्रेजेंट। अच्छा, फहद बिन नासिर प्रेजेंट है। उरूज इलियास। प्रेजेंट है। उरूज इलियास। चैट में लिखा है। उमर कुरैशी प्रेजेंट। प्रेजेंट है। अच्छा, माज अहमद। प्रेजेंट। अच्छा, मारिया खान। Present. जवेरिया गुल। Present. सलमान खान। प्रेजेंट। हमजा तनवीर। प्रेजेंट। शहसवार दानियाल। प्रेजेंट। मोहम्मद बहाज असद। सर मोहम्मद चैट बहाज में लिखा असद। उन्होंने वो आए हैं। प्रेजेंट वहा- है सर। वहाज असद प्रेजेंट कहाँ है? अच्छा, वहाज प्रेजेंट सर है। ये चैट में लिखा है। शहसवार दानियाल। प्रेजेंट। हाँ। आयशा अशफाक। Present. अक्सा। प्रेजेंट है सर। अक्सा प्रेजेंट है, ठीक है, सही है। सर मेरी भी प्रेजेंट लगाने मोहम्मद रूज। मोहम्मद उरूज। अच्छा, यस सर। सुलेमान शरफ भी आ गए। अच्छा, अनीशा राना आ गई या वो भी नहीं आई? वो एब्सेंट हो गई। चलो भी ठीक है।
Okay, so coming to the class, coming back, building routing tables. 4 sets of actions are required to ensure that each node has the routing table, the least cost node to every other node. So first of all, every node creates its link state packets which creates all the information about its neighbors. Then then the LSPs are disseminated to every other router. For example, it does not, in the case of distance vector routing, it used to share it with its only neighbors. Now the link state packet is flooded in the network. Every node gets the packet from every other node. So what happens in flooding is that you receive a packet from one link and you forward it to every other link. Formation of shortest path, and then every node receives all the packets and forms the shortest path tree. And an LSP can carry large amount of information, including node identity, list of its links, a sequence number, and age. Node identities and list of links are needed to make the network topology. The sequence number facilitates flooding and distinguish new LSPs from old ones. So we need to know whether the link state packet we have received right now, it's an old one or it's a new one. Because if the network is updated, then we are going to use the new link state packets. The age prevents old link state packets from remaining in the domain for a long time. Whenever we are flooding, at every node, whenever a packet is received, its age is decreased. So after few iterations, when the age becomes 0, the packet is discarded. The link state packet is discarded. They are generated on 2 occasions: whenever there is a change in topology of the domain, or on a periodic basis. For example, 60 minutes to 2 hours. So we know that everything is going well over the network. So in flooding of LSPs, what happens is that after a node has prepared an LSP, it must be disseminated. Assalamualaikum sir. वालेकुम सलाम. कौन यार इज बैक जी? सर वो अटेंडेंस का बोलना था. बेटा अभी आप डिस्टर्ब नहीं करें, मैं क्लास में चल रहा हूँ ना, बीच में जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं ना. अभी नहीं करना, अटेंडेंस हो गई है, अटेंडेंस शुरू में होती है. सर मैं कब्रिस्तान आया हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ सर. हाँ तो वो 12 एब्सेंसेस इसीलिए होती हैं बेटा, आप डिस्टर्ब नहीं करें क्लास को, ठीक है? चलें ठीक है. After a node has prepared an LSP, it must be disseminated to all other nodes in the autonomous system, not only to its neighbors. The above process is called flooding. सर आवाज आ रही है सर? बेटा डिस्टर्ब नहीं करें, इस वक्त क्लास चल रही है. आपको मैंने बताया है मैंने कि अटेंडेंस क्लास के शुरू में होगी, बीच में नहीं होगी, आखिर में नहीं होगी. और अगर किसी का मिसहैप है, किसी को ज़बरदस्ती किसी वजह से, कोई मिसहैप की वजह से कब्रिस्तान आना पड़ गया है, तो 12 एब्सेंसेस उसी लिए होती हैं, ठीक है? वरना आपको इस टाइम के अंदर बिल्कुल अवेलेबल होकर ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी होती है. ओके. After a node has prepared an LSP, it must be disseminated to all other nodes in the autonomous system, not only to its neighbors. The above process is called flooding and is based on the following. The creating node sends a copy of link state packet out of each interface. A node that receives LSP compares it with the copy it may already have. If newly arrived LSP is older than the one it has, by checking the sequence number, it discards the LSP. If it is newer one, the node does the following: discards the old LSP and keeps the new one, sends a copy of the packet out of each interface except the one from which the packet has arrived. अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? Formulation of shortest path. Formation of shortest path tree. In link state routing, tree is a graph of nodes and links where one node is called the root. So हर नोड जो है वो अपने आप को रूट कंसिडर करेगा और वहां से शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बनाएगा टू एवरी अदर नोड. जो हमने डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम पढ़ा था, वो एल्गोरिथम हर नोड अपने पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी अपने पास रखेगा और उसको रन करेगा. सो व्हाट वी नीड फॉर ईच नोड इज अ शॉर्टेस्ट पाथ ट्री विद दैट नोड एज द रूट. ठीक है ना? Shortest path tree is a tree in which the path between the root and every other node is the shortest. ठीक है? So in formation of shortest path tree, the Dijkstra algorithm
this is the flow chart of the Dijkstra's algorithm. It creates the set the root node to local node and move it to tentative list. ठीक है ना, यानी हमने ब्लैक किया था उसको, तो वो इसको ब्लैक मार्क कर, उसको ग्रे मार्क कर देगा और उसके सारे नेबर्स को देखेगा। अच्छा, अब जब टेंटेटिव लिस्ट यानी ग्रे नोड्स में कोई होगा, पहले वाला नोड ऑलरेडी होगा, तो वो जो है वो चेक करेगा अमंग द नोड्स इन द टेंटेटिव लिस्ट मूव द वन विद शॉर्टेस्ट पाथ टू द परमानेंट लिस्ट। यानी अगर स्टार्टिंग में तो ये अकेला खुद ही टेंटेटिव लिस्ट में है, अपने आप को ये परमानेंट लिस्ट में डाल देगा और उस अपने सारे नेबर्स की जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी उनका डिस्टेंस है नेबर्स का, वो उसके साथ वो उन नेबर्स को जो है वो टेंटेटिव लिस्ट में डाल देगा। उसके बाद वो टेंटेटिव लिस्ट जो है वो उसमें से मिनिमम वाला पिक करता रहेगा और इसी तरीके से उसके नेबर्स को टेंटेटिव लिस्ट में डालता रहेगा जब तक कि टेंटेटिव लिस्ट एम्प्टी नहीं हो जाती और एक एक करके सारे नोड्स परमानेंट लिस्ट में चले जाएंगे। तो एल्गोरिथम डिवाइड्स द नोड्स इनटू टू सेट्स, टेंटेटिव एंड परमानेंट. It finds the neighbors of a current node, makes them tentative and examines them, and if they pass the criteria, they make them permanent. So अब यहाँ पे हम आते हैं परमानेंट लिस्ट ऑफ नोड्स। यहाँ पे हमारे पास शुरू में परमानेंट लिस्ट एम्प्टी है, टेंटेटिव लिस्ट जो है वो उसमें A0 मौजूद है। अभी हम A के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं, ठीक है ना, वी आर लुकिंग एट इट फ्रॉम एज परस्पेक्टिव, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम A के परस्पेक्टिव से उठाएंगे और हम ए को जो है वो परमानेंट लिस्ट में डाल देंगे। अब ए को हमने परमानेंट लिस्ट में डाल दिया तो हमारे पास उसके जो नेबर्स हैं, ऑल ऑफ देम कम्स टू द टेंटेटिव लिस्ट। बी डिस्टेंस विद डिस्टेंस 5, सी विद डिस्टेंस 2, डी विद डिस्टेंस 3, ये हमारे टेंटेटिव लिस्ट में आ गए तीनों, ठीक है। अच्छा, अब ये टेंटेटिव लिस्ट में आ गए तो इसको हमने परमानेंट कर दिया ए को, और अब हमने देखा टेंटेटिव लिस्ट में से मिनिमम वाला कौन सा है, तो सी था। वी मूव्ड इट टू द परमानेंट लिस्ट और अब इसके नेबर्स को हम देखेंगे, सी के नेबर्स को। तो सी के नेबर्स में हमारे पास ए तो परमानेंट में ऑलरेडी मौजूद है, बी जो है वो टेंटेटिव में ऑलरेडी मौजूद है, ई जो है वो उसको वो टेंटेटिव में ऐड कर देगा विद डिस्टेंस इक्वल टू 2 + 4 = 6, ठीक है। अब इनमें से मिनिमम कौन सा है, डी है मिनिमम, तो मिनिमम को परमानेंट में डालेगा और फिर उसके नेबर्स को देखेगा, डी का नेबर कोई भी नहीं है तो अगले स्टेप में वो बी को परमानेंट टेंटेटिव से उठाएगा, क्योंकि मिनिमम बी है, बी और ई में मिनिमम डिस्टेंस 5 बी का है, तो बी को उठा के परमानेंट में डालेगा और यहाँ पे बी के नेबर्स को देखेगा। बी के नेबर्स के अंदर ए तो परमानेंट में ऑलरेडी मौजूद है, सी भी परमानेंट में ऑलरेडी मौजूद है और ई जो है वो टेंटेटिव में ऑलरेडी मौजूद है, तो कुछ भी नहीं करेगा। और उसके बाद क्या करेगा, ये लास्ट नोड है ई, इसको उठा के वो परमानेंट लिस्ट में डालेगा और यहाँ पे एम्प्टी कर देगा टेंटेटिव लिस्ट को। अब हर नोड की तरफ मैक्सिमम डिस्टेंस हमें पता चल गया है कि क्या है और किस नोड के थ्रू हम जा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम जो है वो क्या करेंगे, बी की परमानेंट लिस्ट बनाते हैं। तो बी की टेंटेटिव लिस्ट में पहले बी खुद आ जाएगा, बी विल बी द फर्स्ट नोड इन इट्स टेंटेटिव लिस्ट। जब वो परमानेंट लिस्ट में आएगा तो टेंटेटिव लिस्ट में A5 आ जाएगा, C4 आ जाएगा और E3 आ जाएगा। C4, A5, B3, E3। अब इसमें से मिनिमम कौन सा है, E है, तो वो मिनिमम E को पिक करेगा और उसके नेबर्स को टेंटेटिव लिस्ट में डालने की कोशिश करेगा। C ऑलरेडी टेंटेटिव लिस्ट में है, B परमानेंट लिस्ट में हो चुका है, ठीक है ना, तो वो इसको परमानेंट मार्क कर देगा और उसके बाद फिर वो आएगा मिनिमम वाले के ऊपर। तो मिनिमम इसमें कौन सा है, अब टेंटेटिव लिस्ट के अंदर सी मिनिमम होगा। सी जब मिनिमम होगा तो उसको पिक करेगा उठा के, सी जब मिनिमम होगा तो उसको वो उसके नेबर्स को देखेगा। सी के नेबर्स के अंदर ए जो है वो ऑलरेडी टेंटेटिव लिस्ट में है, ई परमानेंट लिस्ट में है, बी परमानेंट लिस्ट में है, तो वो जो है वो कुछ भी नहीं करेगा, इसको उठा के सिर्फ परमानेंट लिस्ट में डाल देगा सी को। और इसके बाद ये जाएगा आपका यहाँ पे ए पे जाएगा। ए आपका जो है इट इज इन परमानेंट लिस्ट, इट इज इन टेंटेटिव लिस्ट, तो एक ही है टेंटेटिव लिस्ट में, तो उसको पिक करेगा। जब उसको पिक करेगा तो उसको परमानेंट लिस्ट में लेके आएगा और उसके नेबर्स को टेंटेटिव लिस्ट में ले जाएगा डी को, और फिर अगले फेज के अंदर
जब ये भी परमानेंट मार्क हो चुका होगा तो डी को वो उठा के परमानेंट लिस्ट पे लाएगा और ये बी की ट्री बन जाएगी। बी की ट्री कैसे बनेगी? ये एक लिंक हुआ, ये दूसरा लिंक हुआ, ये तीसरा लिंक हुआ और ये चौथा लिंक ए के थ्रू बनेगा। तो हमारे पास बी का शॉर्टेस्ट पाथ टू एवरी अदर नोड इस तरह बनेगा कि बी ए तक वो 5 से जाएगा, डी तक वो 5 + 3 8 से जाएगा, ठीक है, और ई तक वो 3 से जाएगा और सी तक वो 4 से जाएगा, ठीक है ना। वो सी के थ्रू नहीं जाएगा क्योंकि ये कॉस्ट 9 बनता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास सी जो है वो उसकी परमानेंट लिस्ट क्या बनेगी? हमारे पास वो ए पे 2 के थ्रू जाएगा, बी पे 4 के थ्रू जाएगा, सी पे ई पे 4 के थ्रू जाएगा और उसके बाद वो यहाँ से एक लिंक ऐड होगा इसके अंदर, ये वाला जो ए से डी पे जाता है। इसी तरह डी की जो लिस्ट बनेगी यहाँ रूट से स्टार्ट होगा, ए पे जाएगा और ए से जो है वो मिनिमम डिस्टेंस लेगा, सी पे जाएगा और मिनिमम डिस्टेंस वो बी का लेगा और फिर वो मिनिमम डिस्टेंस सी से ई पे लेगा क्योंकि यहाँ पे 2 + 4 + 3 9 है और 3 + 5 + 3 12 है। तो यहाँ से 12 बनता है, यहाँ से 9 का बनता है, तो यहाँ पे सी पे ये लिस्ट बनेगी और इसी तरीके से ई पे जो लिस्ट बनेगी वो ये बनेगी, बी और सी डायरेक्ट आ जाएंगे और उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस ए तक जो है वो सी के थ्रू जाएगा और ए डी पे भी ई के थ्रू जाएगा। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ ट्री है वो हर एक की डिफरेंट बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो, अब आप इसको देखें जरा, तो शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे अब शॉर्ट फॉर्मेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ ट्री एक ही इसने ले ली है, एक ही एग्जांपल इसने दी है कि भाई ए से इसने अपने सारे नेबर्स को देखा, फिर उनके नेबर्स पे गया और इस तरह मार्क करता रहा और मार्क करते करते इस वाले पे आया, डी को परमानेंट लिस्ट पे मूव किया, फिर बी को परमानेंट लिस्ट पे मूव किया, फिर ई को परमानेंट लिस्ट पे मूव किया और इस तरीके से इसने पूरा ये बना दिया है, ठीक है। यहाँ तक किसी को क्लैरिफिकेशन की जरूरत है? कोई चीज आपको समझ में ना आई हो, कोई चीजें हो रही हो? अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये लिखा हुआ है नोड ए जो है कैलकुलेशन ऑफ राउटिंग टेबल फ्रॉम शॉर्टेस्ट पाथ ट्री, ईच नोड यूजेस शॉर्टेस्ट पाथ ट्री प्रोटोकॉल टू कंस्ट्रक्ट इट्स राउटिंग टेबल। द राउटिंग टेबल शोज द कॉस्ट ऑफ रीचिंग ईच नोड फ्रॉम द नोड। ए से ए तक पहुंचने की कॉस्ट 0 है, ए से बी पे पहुंचने की कॉस्ट 5 है जो हमारे पास ये इस राउटिंग टेबल में मौजूद है, और ए से सी तक पहुंचने की कॉस्ट 2 है, वो डायरेक्ट पहुंच रहे हैं, और ए से डी तक पहुंचने की कॉस्ट 3 है जो डायरेक्ट पहुंच रहे हैं यहाँ पे, और ए से ई पे पहुंचने की कॉस्ट 6 है जो कि वो सी के थ्रू पहुंच रहे हैं। इसी तरीके से डी जो है उसकी कॉस्ट ए तक पहुंचने की कम है, ठीक है, उसकी कॉस्ट बी तक पहुंचने की ए के थ्रू है 8 है, उसकी कॉस्ट सी तक पहुंचने की ए के थ्रू है 2 है, उसकी कॉस्ट ई तक पहुंचने की इट्स कॉस्ट टू रीच ई इज 9 थ्रू ए, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास हमने ए और डी का बना दिया, बी का जो राउटिंग टेबल बनेगा उसके अंदर क्या आएगा, बी से ए पे पहुंचने की कॉस्ट 5 है डायरेक्ट, बी से बी पे पहुंचने की कॉस्ट 0 है डायरेक्ट, बी से सी पे पहुंचने की कॉस्ट 4 है डायरेक्ट, बी से ई पे पहुंचने की कॉस्ट 3 है डायरेक्ट, और बी से डी पे पहुंचने की कॉस्ट 8 है थ्रू ए। इसी तरीके से हम ई पे आएंगे तो ई के राउटिंग टेबल के अंदर ए पे पहुंचने की कॉस्ट 6 है, मिनिमम कॉस्ट 6 है थ्रू सी, बी पे पहुंचने की कॉस्ट डायरेक्ट है 3, सी पे पहुंचने की कॉस्ट डायरेक्ट है 4, डी पे पहुंचने की कॉस्ट 9 है, 4 + 2 + 3 9 थ्रू सी, और डी पे और ई पे पहुंचने की कॉस्ट 0 है। इसी तरह सी से ए पे पहुंचने की कॉस्ट 2 है डायरेक्ट, बी पे पहुंचने की कॉस्ट 4 है, सी पे पहुंचने की कॉस्ट 0 है डायरेक्ट है, ई पे पहुंचने की कॉस्ट, डी पे पहुंचने की कॉस्ट 5 है थ्रू ए, और ई पे पहुंचने की कॉस्ट जो है वो 4 है डायरेक्ट। इस तरह से हमारे पास राउटिंग टेबल सबका बन जाएगा इंडिविजुअल।
अच्छा, अब इसके अंदर देखें, एक बात नोट करें कि यहाँ पे हमारे पास जो 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 हो रहा है, इसके अंदर शॉर्टेस्ट पाथ ट्री जो हम डाइक्स्ट्रास का एल्गोरिथम लगा रहे हैं, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो है, बहुत ज़्यादा क्या नाम है, स्केलेबल नहीं है ये चीज़। ठीक है ना, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये स्केलेबल नहीं है, क्योंकि अगर आपके नंबर ऑफ नोड्स 4-5 हैं तो 4-5 नोड्स जो है वो लिंक स्टेट पैकेट्स अपने भेज रहे हैं। अब हर नोड के पास अपना लिंक स्टेट पैकेट भेजना है, तो ये तो फैक्टोरियल में इंफॉर्मेशन चली जाती है। 5-10 राउटर्स हो तो समझ में आता है, फिर भी पैकेट इधर से उधर चला जाएगा। लेकिन अगर 5-10 राउटर्स नहीं है, नंबर ऑफ राउटर्स बहुत ज्यादा है, तो फिर आपके लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा काम करना, और आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए जो है वो आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे जो है वो क्या नाम है, कि किस जगह पे इसको यूज करना है। तो अगर बहुत ज्यादा राउटर्स होते हैं आपके पास तो आपको लिंक स्टेट राउटिंग यूज नहीं करनी होती है, आपको डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग यूज करनी होती है, जो कि आपका बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम यूज करता है, क्योंकि वो एल्गोरिथम सिर्फ अपने नेबर्स से मैसेज एक्सचेंज करता है, और न्यूज, नेबर्स की न्यूज एक एक करके पहुंचती है आगे। डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम या आपका लिंक स्टेट एल्गोरिथम जो है, ये पूरे के पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करता है, और फिर अपनी लिंक स्टेट शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बनाता है, जो कि इटसेल्फ बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा अगर आपके नंबर ऑफ नोड्स बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर नंबर ऑफ नोड्स 50 हो गए तो लिंक स्टेट पैकेट जो फ्लडिंग होगी वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जितने नोड्स की इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करनी पड़ेगी इसको, और जितने लिंक्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इतने ज़्यादा वो मेमोरी और टाइम की कंजम्पशन जो है वो मुनासिब तरीके से नहीं हो पाती। ठीक है ना। अच्छा, जो तीसरा होता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। उसके अंदर हमें पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर तो नेटवर्क पूरे राउटर्स, देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ राउटर्स ओवर देयर। अब वो इतने सारे राउटर्स हमारे होते हैं, तो उसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसकी सारी राउटर्स की इंफॉर्मेशन तो अपने पास रख नहीं रख सकते। तो लिंक स्टेट राउटिंग तो इंटरनेट के अंदर तो पॉसिबल सोचना भी आदत है। इवन ये कि जो आपका डिस्टेंस फैक्टर राउटिंग होता है, जो कि आपका बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम को यूज़ करता है, उसको भी यूज़ करना जो है वो बहुत सही, बहुत मुनासिब नहीं है। ठीक है ना, आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप हर नोड की इंफॉर्मेशन पूरे पूरे इंटरनेट के अंदर प्रोपेगेट कर रही होगी, उन नेटवर्क नोड्स की इंफॉर्मेशन भी प्रोपेगेट कर रही होगी जिनसे आपको कभी भी कनेक्शन लगाना ही नहीं है, कनेक्शन बनाना ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है वो आपके ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, तो अब कोई क्वेश्चंस अगर आप लोगों के हैं तो बता दें, हम उनको पहले एड्रेस कर लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम जो है वो इसको वो कर लेते हैं, लेट्स वी कैन कॉल इट अ डे। अगर आप इसको क्वेश्चन नहीं है तो, अगर क्वेश्चन है तो फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स कॉल इट अ डे। हमारा जो है ये पूरा हो गया। ठीक है ना, कोई सर क्वेश्चन नहीं है जी। सर मुझे अटेंडेंस का पूछना था सर। वो मेरा मोबाइल हैंग हो गया था, मैंने थोड़ी देर के बाद ज्वाइन किया था। तब तक आपने अटेंडेंस ले ली थी। मैंने 45 या 50 तक ज्वाइन कर लिया था, लेकिन आप पढ़ा रहे थे, इस वजह से मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको। भाई देखें, आप लोग जो है ना इसको समझें बात को, कि ये सर अटेंडेंस मैं जो है ना, मैंने आपको फर्स्ट क्लास बताया में भी भी है कि अटेंडेंस की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। ठीक है ना, और उसके अंदर जो है ना आपको पहले 10 मिनट के अंदर अटेंडेंस लेनी होती है। ठीक है ना, लाजमी तौर पर फिजिकल भी और ये वाली भी। सर को बोल भी रहा हूँ मैं, कब्रिस्तान आया हूँ तब भी नहीं लगा रहे सर। तो आपको कब्रिस्तान नहीं आना ना, आपकी क्लास है इस वक्त शेड्यूल्ड, आप मैं कब्रिस्तान तस्वीर भी गए हुए भेज हैं। रहा हूँ। आप कब्रिस्तान आए हुए हैं तो किसी इमरजेंसी की वजह से आए होंगे ना। यस सर सर। लेकिन अभी क्लास का टाइम तो हाँ, खत्म तो नहीं हुआ वो ना, साढ़े इमरजेंसी जो है
उसी के लिए एक 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 करके करेंगे ना। अनीशा आपसे बात करता हूँ, जब आप एक 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 करके करेंगे ना, अगर आप जो है इमरजेंसी में कहीं पे आए हुए हैं, तो आप जो 12 एब्सेंसेस आपकी होती हैं वो उसमें से इस्तेमाल होती हैं आपकी एब्सेंसेस, ठीक है ना। वो इसीलिए होती है 12, वरना आपके एक भी अलाउड नहीं होती। ठीक है जी। सर फेवर दे दें बच्चों को थोड़ी सी आज। फेवर नहीं दे सकते क्योंकि ये अटेंडेंस पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। तो ये आपको जो है बियर करना पड़ेगा रेस्ट ऑफ द जो आपका जो है ना सेमेस्टर, उसके अंदर इसी तरह चलेगी ये अटेंडेंस पॉलिसी, कि अगर आप होंगे क्लास में तो अटेंडेंस लगेगी, अगर आप नहीं होंगे तो आपकी अटेंडेंस नहीं लग सकती, ठीक है ना। सर ये मेरी बात अभी अब सुनिएगा। बहुत स्ट्रिक्टनेस हो गई है, तो अब इसको आप आपको फॉलो करें इसको, ताकि जो है वो आप लोगों को एग्जाम का कोई इशू ना आए, ठीक है ना। सर सही है। मैं बट क्लास में आ गई थी, लेकिन मेरा थोड़ा सा लेट हो गया था एंड क्लास की टाइमिंग अभी खत्म भी नहीं हुई है। मैंने 5 तक ज्वाइन कर लिया था, बट मेरा नेम चला गया था, मैं इसलिए बीच में इंटरप्ट नहीं किया आपको। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। मैंने स्क्रीनशॉट जब ज्वाइन किया था ले लिया था, मेरा नाम चला गया था उस टाइम तक, तो मैंने बीच में बस इंटरप्ट नहीं किया आपको, बाकी मैं क्लास में थी। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए था मैं आपको दे देती हूँ। मैं स्क्रीनशॉट का मैं क्या करूंगा, मैंने जब आपका नाम कॉल किया था तब आपको होना चाहिए ना। सर जब आप आपने नाम नेम कॉल किया था, मोबाइल हैंग हो गया था, कनेक्ट नहीं हो रहा था, लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा था, बाद में हो गया था। पानी इधर ही, मोबाइल मेरे पास है। बहरहाल अब लगा इसमें दें जो है सर, वो, अटेंडेंस लगा दें। अब जो है वो कोई अब जो है ना क्या नाम है, बिल्कुल सीरियस मामला है मैनेजमेंट की तरफ से, आपको बिल्कुल जो है ना कोई रिलैक्सेशन नहीं है अटेंडेंस की आप लोगों को। अगर कहीं रोड बन रहा है, रोड खराब है, कुछ भी है, आप लोगों ने टाइम पे यहाँ पे आना है, टाइम पे पहुंचेंगे तो अटेंडेंस लगेगी, वरना पे अटेंडेंस नहीं लग सर पाएगी, मैं तो ठीक है। क्लास में थी ना सर, बट मैं चले तो ठीक क्लास है, में थी। तो वो आपने उस टाइम पे बोलना चाहिए ना। सर नाम चला गया था ना मेरा, आप अटेंडेंस रिकॉल कर रहे थे बाकी सबकी, फिर आप पढ़ाने लग गए। मैंने बीच में बोला भी था, बट फिर आप पढ़ा रहे थे तो मैं चुप हो गई इस वजह से। हाँ लेकिन जो अटेंडेंस तो खत्म हो चुकी थी जब आप आई हैं, तो तो अटेंडेंस के एक बाद आई सेकंड हैं। अटेंडेंस खत्म हो गई। अटेंडेंस खत्म हो चुकी थी बेटा, आपको जो है वो टाइम पे आना सर चाहिए तो था क्लास आपको। में देखा अच्छा कि चलो ठीक है, मिस की वजह से ही क्लास होता है, ये जो 12 एब्सेंसेस होती हैं मिस की वजह से ही लगा होती हैं, वरना जरूरी नहीं होता कि आप जो है 12 की 12 पूरी करें, ठीक है ना। 45 से जो क्लास थी वो वेस्ट, मतलब अभी 3:30 बजे तक की क्लासेस है, अभी नहीं टाइम वेस्ट क्यों, फिक्सेड है आपने तो बहुत सारा, आप। आपने बहुत सारा नॉलेज गेन किया है, वेस्ट कैसे हो गई। सर आप हाफ आवर की लगा दें, अभी हाफ आवर बचा हुआ है, देखिए 3:30 बजे तक का टाइम होता है क्लास का। हाफ आवर कहाँ बचा हुआ है अभी आपका, जो है वो अटेंडेंस तो शुरू में होती है ना, आखिर में थोड़ी होती है। सर चलिए ठीक लगा है, लेट्स दें कॉल इट प्लीज। अ डे, ठीक है। ओके, आप अटेंडेंस चेक कर लीजिएगा अपनी, उसके ऊपर कितनी चल रही है, ठीक है।